رانو چڑیا کی شادی ایک اچھے اور امیر پریوار میں ہوئی تھی، لیکن رانو چڑیا کی ساس گہنے روپے پیسہ ہمیشہ اپنے پاس تجوری میں سنبھال کر رکھتی تھی۔ ایک دن گڑیا رانو چڑیا کے پاس آتی ہے۔ مما، دادو نے الماری کو تالا کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ اس میں قیمتی چیزیں ہیں۔ میٹھے پھل سے بھی قیمتی؟ رانو چڑیا ہنسنے لگتی ہے۔ ہاں بیٹی، میٹھے پھل سے بھی قیمتی۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا تھوڑی بڑی اور سمجھدار تھی، جبکہ کوکو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ رانو چڑیا کی ساس اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک پیڑ پر بیٹھی موسم کا آنند لے رہی تھی کہ اس کے پاس گوری کبھی آتی ہے۔ کیسی ہو ماں جی؟ ٹھیک ہوں بیٹی، تم سناؤ، اور بہو کیسی ہے؟ پڑھی لکھی ہے، خوب تیز ہوگی۔ نہیں بیٹی، بہو تو بہت اچھی ہے، سارے کام بھی کرتی ہے اور میری ہر بات بھی مانتی ہے۔ بس بس رہنے ہی دو، آج کل کی ساس بھی پہلے پہل بہو کی غلطی پر پردے ڈالتی ہیں، پھر بہو جب اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو سر پکڑ کر روتی ہیں۔ نہیں گوری، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو دیکھ لینا، جس دن اس نے تمہاری تجوری صاف کی پھر مجھے ہی رو رو کر بتاؤ گی۔ گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو کی ساس یہ بات اپنے دل سے لگا لیتی ہے۔ کیا سچ میں بہو اچھا بننے کا صرف ناٹک کر رہی ہے؟ ساس کے دل میں وہم ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ گوری خوشی خوشی اپنے گھر جاتی ہے۔ کالو کالو، کہاں ہو؟ سنو سنو۔ آئے ہائے گوری، کیا گھر داخل ہوتے ہی شور مچا دیا ہے؟ آرام سے دھیرے سے بات کرو۔ کالو ایسی آگ لگائی ہے کہ وہ رانو اس میں ضرور جلے گی۔ خوشی، کالو جی خوشی، تم دیکھنا، یہ ساس اپنی بہو رانو کو گھر سے نکال دے گی۔ دوسری طرف رانو چڑیا کی ساس اپنے گھر جاتی ہے تو رانو چڑیا کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتی ہے۔ مما، مجھے نیل پالش لا دے پلیز، میری دوست مینا ہے نا، اس کے پاس نیل پالش ہے، مجھے بھی نیل پالش چاہیے۔ اچھا بیٹی، میں نے بازار جانا ہے نا سبزی لینے، تو میں اپنی بیٹی کے لیے نیل پالش لا دوں گی۔ گڑیا خوش ہو جاتی ہے۔ بہو، پیسے کہاں سے لوگی؟ گڑیا کے پاپا نے رات ہی مجھے پیسے دیے تھے۔ ویسے بھی ماں جی، نیل پالش کتنے تک آ جائے گی؟ ایسی فضول خرچی کرنی ہی کیوں ہے؟ ماں جی، بیٹی کا دل رکھنے کے لیے میری بیٹی بہت خوش ہوگی۔ رانو چڑیا اتنا کہہ کر بازار کی طرف چلی جاتی ہے۔ بھائی صاحب، آلو کیسے دے رہے ہیں؟ 10 روپے کلو۔ 8 روپے لگا لو۔ اچھا رانو بہن، لے لو۔ رانو چڑیا آلو لیتی ہے اور سیدھی نیل پالش لینے کاسمیٹک شاپ پر چلی جاتی ہے۔ بھائی، ذرا میری بیٹی کے لیے اچھی سی نیل پالش دکھانا۔ یہ لو رانو بہن، یہ 2 روپے کی، یہ 3 روپے کی، آپ بتاؤ کون سی چاہیے؟ 2 روپے والی ہی دے دو۔ رانو چڑیا وہ نیل پالش خرید کر بہت خوش تھی۔ دوسری طرف رانو چڑیا کی ساس کی تجوری کی چابی گم ہو جاتی ہے۔ ہائے، میری تجوری کی چابی کہاں گئی؟ یہ رانو میرے پیسوں پر عیش کرے گی، تبھی آج بیٹی کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے۔ آنے دو ذرا اس کلموہی کو۔ رانو چڑیا کی ساس بنا کھوجے اور بنا سوچے سمجھے الزام اپنی بہو پر لگا دیتی ہے۔ رانو چڑیا جیسے ہی گھر آتی ہے، رانو کی ساس فوراً رانو کے پاس آتی ہے۔ دکھا دکھا مجھے، تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ رانو کی ساس فوراً پرس پکڑ کر دیکھنے لگتی ہے، جبکہ رانو چڑیا حیران ہو کر اپنی ساس کے منہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ماں جی، آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کل موہی، تم نے میرے پیسے چرائے اور میرے ہی سامنے جھوٹ بول دیا۔ آنے دو، آج میرے بیٹے کو آنے دو، دیکھنا کیسے تجھے آج دھکے دے کر گھر سے نکالتی ہوں۔ رانو چڑیا چپ چاپ اپنے بچوں کو لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے، مانو چھٹا گھر آتا ہے۔ رانو، مجھے پانی دو۔ رانو کی بجائے رانو کی ساس جلدی سے مانو کو پانی دیتی ہے۔ مانو بیٹا، تم رانو کو کتنے پیسے دے کر گئے تھے؟ تبھی رانو بھی کمرے سے نکل آتی ہے۔
माँ जी 50 रुपए। क्यों, क्या हुआ? मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। मुझे लगा उस रानू ने पैसे चुरा लिए। माँ जी, कितना समय हो गया है रानू को इस घर में। आज तक रानू ने कभी ऐसा काम नहीं किया और आप कब से ऐसा सोचने लग गई? रानू चिड़िया की सास बहुत शर्मिंदा होती है और गौरी की सारी बात बताती है। माँ जी, गौरी का काम ही घरों में लड़ाई करवाना है। रानू की सास रानू चिड़िया से कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी तिजोरी की चाबी सच में खो गई है। माँ जी, आप मुझे पहले बता देती। माँ, मैं खोजता हूँ, हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गई हो। फिर मानो और रानू चिड़िया चाबी की खोज में पूरा घर छान मारते हैं। आखिर उनको चाबी कुकू के खिलौनों में मिल जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। माँ जी, लेकिन उस गौरी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। फिर रानू चिड़िया खीर बनाती है और रानू की सास गौरी को घर दावत पर बुलाती है। हाय कालू जी, आज रानू चिड़िया के हाथ की खीर मिलेगी, चलो तुम भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खीर का सुनकर कालू के मुंह में पानी आ जाता है और फौरन जाने को तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर खीर खाने जाते हैं। रानू चिड़िया रसोई में थी। माँ जी, अपनी बहू पर नजर रखने लगी हो या नहीं? हाँ गौरी, मैंने अपनी बहू पर बहुत नजर रखी है, तभी तो तुम्हें आज दावत पर बुलाया है। वाह, मेरे तो मजे हैं। तभी रानू चिड़िया खीर ले आती है। गौरी बहन, ये ले खीर खाएं। गौरी जल्दी जल्दी खीर खाने लगती है। अभी गौरी ने थोड़ी खीर ही खाई थी कि गौरी का मुंह जल जाता है। हाय पानी, पानी, मेरा मुंह जल गया। ये ले पानी पी। रानू चिड़िया ने पानी में भी मिर्ची मिलाई हुई थी। गौरी जैसे ही पानी पीती है उसका मुंह और जल जाता है। हाय, कौन सा बदला लिया है मुझसे? रानो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले अपना तो इलाज करवाओ। आज के बाद मेरे घर के मामलात में कोई बात की तो मैं इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। गौरी कभी जल्दी से नदी की तरफ भागती है और कालू, जिसने अभी एक नवाला भी नहीं लिया था, बच जाता है और वो भी फौरन गौरी के पीछे भागता है। रानो और उसकी सास हंसने लगती हैं। इस तरह गौरी को हमेशा के लिए सबक मिल जाता है और रानो चिड़िया के घर फिर से सुकून आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानू चिड़िया झड़ने वाले जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, हर किस्म की आसाइश थी। रानू चिड़िया को जितना ऊपर वाले ने दिया था, रानू चिड़िया भी सब जंगल वासियों की उतनी ही मदद करती थी। एक दिन गौरी कभी रानू चिड़िया के घर आती है। आओ आओ गौरी बहन। रानू बहन, मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आई हूँ। जी गौरी बहन, क्या हुआ? रानू, तुम्हें तो पता है कालू के पास कोई नौकरी नहीं है, तुम प्लीज अपने घर में उसे नौकरी दे दो। गौरी बहन, मेरे घर में तो पहले ही बहुत मुलाजिम है। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा रानू, लेकिन हमारी रोजी रोटी जरूर चल पड़ेगी। ठीक है गौरी बहन, आप कालू को भेज देना।
गौरी खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। कालू, मैंने बहुत मिन्नत करके नौकरी ढूंढी है, अब दिल लगाकर काम करना। हाँ हाँ ठीक है। कालू कौवा एक नंबर का धोखेबाज और मक्कार कौवा था। वो एक जगह टिककर काम नहीं करता था, इसलिए उसे कोई नौकरी ना देता। दूसरी तरफ रानू चिड़िया मानो चिड़े से कालू की नौकरी की बात करती है। रानू, तुम्हें पता है वो अच्छा पक्षी नहीं है। अब तक जितने भी पक्षियों के साथ उसने काम किया है, सबको धोखा दिया है। वो बेचारी रो रही थी। आप उसे घर मत रखें, खेतों में ले जाएं। वैसे भी आप सारा दिन उनके साथ होंगे। अच्छा ठीक है रानू, कुछ करते हैं। अगले दिन कालू कौवा मानो चिड़े के साथ काम पर जाता है। कालू, मजदूर खेतों में लाल मिर्ची तोड़ रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ काम करो। ना बाबा ना, ये मिर्ची मेरे पंख जला देगी, मुझे कोई और काम दो। ठीक है, फिर तुम खेतों को पानी लगा। कालू कौवा आराम आराम से काम करने लगा है। उधर गौरी कौवी कालू को काम मिलने की वजह से बहुत खुश थी। ऊपर वाले अब कालू को अक्ल देना, अब ना वो कोई उल्टा सीधा कर दे। उधर खेतों में पानी लगाकर कालू कौवा थक जाता है। मानो जी, मैं और ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई आसान सा काम दे। काम करना हो तो कोई भी मुश्किल नहीं कालू, ये तो काम चोरों वाले काम। कालू कौवा वापिस घर आ जाता है। गौरी, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो मानो एक तो इतना काम करवाता है, ऊपर से बातें भी सुनाता है। अरे नौकरी की तो नखरा किया। कालू जी, अब काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अगली सुबह कालू बहुत मुश्किल काम पर जाता है। हाँ भी कालू, आज क्या करोगे? जो सबसे आसान काम हो। ठीक है, ये मजदूर मिर्ची तोड़ कर लाते हैं, तुम बस गिनती करके लिखते जाओ। मैं जमीनों की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है अरे कालू, अच्छा मौका है। और मानो को आधे से भी कम देता है। इतने कम मिर्ची के बंडल, पैदावार तो बहुत अच्छी थी। यही है मालिक। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रात होते ही कालू कौवा वो छुपाए हुए बंडल अपने घर ले जाता है। अरे ईमानदारी से मानो क्या ही देगा, ऐसे बहुत पैसे आएंगे। अगले दिन कालू कौवा वो मिर्ची के बंडल कबूतर को बेच देता है। कालू कौवे, ये तुम कहाँ से उठा लाए? मैं मेहनत करता हूँ, तभी तो मेरी मिर्ची की फसल इतनी अच्छी हुई है। लेकिन तुम्हारी अपनी तो जमीन नहीं है। अरे वो मानो चिड़ा है ना, मैं उसके साथ मिलकर काम करता हूँ। और तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? नहीं लेनी तो मत लो। अच्छा कालू भाई। फिर कबूतर कालू को पैसे दे देता है। एक दिन मानो चिड़ा घर बैठा हिसाब कर रहा था। ये क्या, ये जमीनें इतनी कम फसल क्यों देने लग गई हैं? क्या मतलब, हमारी जमीनें तो इस इलाके की सबसे जरखेज जमीन है, फिर ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से कालू आया है तब से यही हो रहा है। तो आप एक दिन निगरानी करें। मानो चिड़ा एक उल्लू सिपाही को बुलाता है। उल्लू, तुम आज सारा दिन छुपकर कालू की निगरानी करो और मुझे बताओ। कालू कौवा शाम तक खेतों में काम करता है और शाम को खाली हाथ वापस चला जाता है, लेकिन वो अनाज छुपाना ना भूला और उल्लू को ये सब पता चल जाता है। ये धोखेबाज कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, मालिक को बताना पड़ेगा। फिर उल्लू मानो को सारी बात बताता है। ठीक है उल्लू, तुम जाओ। फिर मानो चिड़ा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं मानो जी, कैसी मदद? फिर मानो कबूतर को सारी बात बताता है। हाँ, वो रोज यहाँ ही आता है, आज मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मानो चिड़ा दुकान में छुपकर बैठ जाता है। रात होते ही कालू कौवा अनाज लेकर दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भाई कबूतर भाई, आज भी माल तैयार रखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू कौवे। इतने में मानो चिड़ा सामने आता है। जरा हम भी देखें क्या माल लाए हो। मालिक आप? हाँ कालू, तुम्हें क्या लगा कि तुम धोखा देते रहोगे और हम खाते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? मालिक मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे काम से मत निकालना। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए कालू, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए। अब जाओ, इस जंगल में तुम्हें कोई काम नहीं देगा। कालू कौवा अपने घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ कालू, आज माल नहीं लाए? गौरी, मेरी नौकरी चली गई। क्या? लेकिन कैसे?
तुम तो कहते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं गौरी, अब मालिक ने ये भी कहा है कि कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। हाय सत्यानाश हो कालू, अब क्या होगा? हमारे इतने खर्चे कैसे पूरे होंगे? गौरी जल्दी चलो, ये ना हो कि वो मानो पुलिस बुला ले। फिर दोनों कौवे उस जंगल से निकल जाते हैं। मानो जी, आपने कौवे को कोई सजा क्यों ना दी? उनका इस जंगल से जाना ही सजा है। वो अब दर दर की ठोकरें खाएंगे तो खुद अकल आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।